So today we are going to start a new chapter, that is the digestive system. Okay, so the introduction for the digestive system. Two groups of organ forms the digestive system. Okay, तो digestive system जो है उसमें दो groups, मतलब जितने भी organs है हमने उसको दो group में बांट दिया है. फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ऑर्गन एंड सेकेंड ग्रुप में आते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हमने दो ग्रुप में बांटा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ऑर्गन एंड एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन. ओके, so first one is what is the gastrointestinal tract organ. Okay, gastrointestinal tract organ. What is gastrointestinal tract? Gastrointestinal tract is a continuous tube that extends from mouth to anus. Okay, so what is gastrointestinal tract? It is a continuous tube. इसमें कहीं पे भी क्या है, ब्रेकेज नहीं है. देखो ये वाला जो है, it is a continuous tube. It starts from mouth, then esophagus, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब. इसमें कहीं पे भी कोई भी ब्रेकेज नहीं होता. ये कंटिन्यूस ट्यूब है एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द दिस इज द एनस. ओके, what are the organs? The organs are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Okay, so these are the organs: mouth, esophagus, pharynx, also mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, this gastrointestinal tract, the gastrointestinal tract is about 9 meter, matlab it is about 30 feet long. Okay, so this is about the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract is a continuous tube that extends from mouth to anus. The organs are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. It is about 30 feet long. Now what are the accessory digestive organ? The accessory digestive organ includes your teeth, tongue. These are the salivary glands. There are 3 salivary glands: teeth, tongue, salivary glands. This is the liver. This green color portion is called as gallbladder. Okay, liver, gallbladder. Pancreas, this is the pancreas. Okay, and these all are the accessory digestive organ. What are they? Teeth, tongue, then this salivary glands, liver, gallbladder and pancreas. These are the accessory digestive organ. Now what are the function of accessory digestive organ? The accessory digestive organ produce secretion that flow into the gastrointestinal tract through the ducts, and this secretion help in the chemical digestion of the food. Okay, so what the accessory digestive organ do? Accessory या digestive organ करते क्या हैं? कुछ secretion, जैसे liver bile produce करता है, pancreas pancreatic juice secrete करता है, salivary gland saliva secrete करता है, और एक duct के थ्रू, ओके, डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना सिक्रेशन किसको दे देते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को दे देते हैं. ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो भी फूड आता है इस सिक्रेशन के साथ मिक्स होता है, तो उस फूड में क्या होता है? केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस होता है. देयरफॉर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीट आउट करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे लीवर बाइल सिक्रीट करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है. ठीक है, जो भी आप फूड लेते हो वो माउथ से कहाँ आता है? आपका फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन फिर वो एनस के थ्रू जितना भी एंड प्रोडक्ट रहता है वो बॉडी से बाहर चले जाता है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब. यहीं से क्या होता है? फूड पास होता है. लेकिन क्या हमने ये देखा कि फूड क्या बोलते हैं, ईसोफेगस के बाद लीवर में जा रहा है या गॉल ब्लैडर में जा रहा है या पेनक्रियाज में जा रहा है? नहीं, ये सब क्या रहता है? ये जो फूड रहता है वो आपके जीआई ट्रैक से पार होता है, और ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये अपने सिक्रीशंस जीआई ट्रैक को देते हैं, जिसमें से फूड पास होता है डक्ट के थ्रू, ताकि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें क्या हो? केमिकल डाइजेशन हो सके, केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड हो सके. सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ऑर्गन एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. नाउ व्हाट आर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? ओवरऑल फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला होता है इंजेशन. नाउ व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ. जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन. जो भी चीज़ आप माउथ से अंदर ले रहे हो, मुंह से अंदर ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन. जो भी, चाहे आप फूड ले रहे हो, चाहे आप जूस पी रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे आप बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, जो भी चीज़ आप माउथ से अंदर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंजेशन. सेकेंड इज द सिक्रीशन. व्हाट इज सिक्रीशन? ईच डे the cells present in the gastrointestinal tract and accessory digestive organ secrete about 7 liters of water, acid, buffers, enzymes into the lumen of the tract. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हर दिन, एवरी डे, जितने हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के ऑर्गन हैं और जो हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, वो एक दिन में अबाउट 7 लीटर्स ऑफ सिक्रीट आउट करते हैं. क्या क्या सिक्रीट आउट करते हैं? वाटर, एसिड, बफर, एंजाइम, और वो सब कहाँ रिलीज करते हैं? इनटू द ल्यूमेन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. क्लियर? थर्ड पोर्शन इज द मिक्सिंग एंड propulsion. Now what is mixing and propulsion? The contraction and relaxation of a smooth muscle in the wall of GI tract mix food and propel them toward the anus. जो भी आप फूड खा रहे हो, है ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक लेयर से सराउंडेड रहता है. दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ मस्क्यूलरिस, जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है. जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो भी आप फूड खाते हो वो क्या होते हैं? आपस में मिक्स आउट होते हैं. ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो भी फूड है स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है? वो आपस में मिक्स होते हैं. प्रोपल मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, और वो क्या होते हैं? स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. अपने आप नहीं जाते. जो स्मूथ मसल्स रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाता है. दैट इज़ द मिक्सिंग एंड प्रपल्शन. दिस इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ फोर्थ फंक्शन इज द डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? दो टाइप के डाइजेशन होते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन होता है. मैकेनिकल मतलब क्या होता है कि कोई फोर्स लग रहा है ना, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में कोई फोर्स लग रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन का एग्जाम्पल है जैसे जब आप फूड लेते हो और जब आप उसको टीथ से च्यू करते हो, जब आप च्यू करते हो फूड को, तो वो बड़ा फूड क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज, और दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन. ओके, द एग्जाम्पल इज टीथ कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. नाउ व्हाट इज द केमिकल डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? जो भी आप फूड खाते हो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? लार्जर फॉर्म में रहते हैं, है ना. कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल, ये सब क्या है? लार्जर फॉर्म में है. ठीक है, जब ये लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर पीसेस में जब ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, कैसे ब्रेक हो रहे हैं? अब ये कैसे है जो ये लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर पीसेस में ब्रेकआउट हो जा रहे हैं? ये कैसे ब्रेकआउट हो जा रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो रहे हैं? ये बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रहे हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम इनको कहाँ से मिल रहा है? जैसे कि पेनक्रियास, है ना, जैसे मैंने बताया लीवर, है ना. देन आता है आपका सलाइवा. दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम. ये पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, सलाइवा सलाइवरी जूस सिक्रीट करता है. इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं. ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब इस बड़े बड़े पार्टिकल्स के साथ में मिलते हैं तो इन पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्ट में तोड़ देते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. केमिकल डाइजेशन किसकी मदद से हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. और मैकेनिकल डाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ सम फोर्स, लाइक जब आपका टीथ फूड को छोटे छोटे पार्ट में कट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल डाइजेशन. क्लियर है? देन नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट? अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे ही आपका फूड पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है तो इट कैन बी
ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लड में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और ब्लड उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, बॉडी के सेल्स तक क्या कर देता है, छोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है। देन व्हाट इज डेफिकेशन? डेफिकेशन में क्या होता है, दिस इज़ द लास्ट फंक्शन। डेफिकेशन में क्या हो रहा है, जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ या फिर जो वेस्ट है, वो क्या होता है, इस एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। मतलब जो आप पॉटी करते हो उसमें क्या रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो बॉडी को छोड़ के बाहर निकलती है बाय द एनस के थ्रू, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेफिकेशन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरऑल कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। इंजेशन, देन सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रपल्शन, डाइजेशन, absorption and defecation. Okay, so this is the introduction of digestive system. Okay, organs are divided in 2 group, gastrointestinal tract organ and accessory digestive organ, and there are 6 function: ingestion, secretion, mixing and propulsion, digestion, absorption and defecation. Thank you.